So, good evening, all of you. Okay, I can Good evening. see Good evening. faces. Okay, and videos are on, so very good. I'm happy seeing this. And also to the newcomers, welcome to the people who are new. Okay, so just in case, a short recap of what we have done last time. So मैंने बोला था कि आज तुम लोग का oral होगा. I hope everybody is ready with the same, except the who are new. I think. Fine. Sorry. Okay, so Shreya, can you tell me what was the last part we have done in the last lecture? Body cavity. Body cavity. Is that the last category? मतलब इसके बाद directly phylums चालू होने वाला है क्या? Body segmentation. बाकी है क्या? सब कैटेगरीज खत्म किया था ना? That's my question. Yes, miss. और लाइक जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन का कैटेगरीज पढ़ने वाले थे वो सब हो गया है कि बाकी है? That is what I want to ask you. Okay, just a minute. Okay, fine. So I think I'll just share the screen for you people. Just a minute. Before sharing the screen, कुछ questions पूछना चाहूंगी. So textbooks बंद करो, नहीं करो, जो भी है. अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो भी किसको पता चल रहा है, isn't it? You can just fake me off, but then the person to whom I asked the question has to look over here and answer. So मैं पता कर सकती हूँ कि किसको कितना याद है. First question, have you all revised जो भी किया था last lecture में? Yes, miss. Yeah, because करना ही है, because अगर तुम लोगों ने ये नहीं रिवाइज किया तो योर टुडेज पार्ट जो हम फाइलम्स चालू करने वाले हैं वो बिल्कुल भी तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा. ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन. ओके, लास्ट का ये जो बॉडी सेगमेंटेशन का जो बोल रही है, दैट पार्ट उतना एक मैं डन कर देती हूँ. ठीक है, उतना एक फिनिश कर देते हैं. उसके बाद में हम लोग ओरल्स पे जा सकते हैं. So just a minute. Okay, so I think yeah. Can you all see the screen? Yes. 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 Okay. So हमने last time जो देखा था, that was all about the germ layers, body cavity, उसको सीलम भी बोला जाता है. कितने types of body सीलम है वो भी हमने देखा था. ठीक है, as well as इसमें एक छोटा सा part रह गया था, that was about the body segmentation, जो शायद मैंने तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दिया था कि जो लाइनिंग जो होते हैं ऑर्गेनिज्म पे, या फिर जैसे फिशेस पे राउंड राउंड राउंड, या फिर ऐसे नो राउंड कलर का जो स्ट्रक्चर होता है उनको स्केल्स कहा जाता है. तो उसी तरीके से जो अर्थवर्म्स है, या फिर आई थिंक अर्थवर्म ओनली हु हैव प्रॉपर सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडी, या फिर प्रॉपर लाइनिंग्स, तो उनको उस प्रोसीजर लाइक उसको कहा जाता है बॉडी सेगमेंटेशन. दैट इज द कैटेगरी. So if the body of the animals is being divided into small similar units, then such body is called as a segmented body, and each small unit is called as a segment. ठीक है, example animals like earthworm from phylum Annelida. तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने earthworm के बारे में दिया हुआ है. आगे जब हम Annelida पढ़ेंगे तो उसमें तुमको और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स देखने को मिलेगा. ठीक है, so before going to that, now यहाँ तक मैंने एक खत्म कर दिया है. So you can just revise from here also if you all want कि यही सारी चीजें हम लेक्चर में खत्म. ठीक है, fine. So I think we can end this now and I can start with the oral session.
जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि वो रूल्स में आ जाता है कि यू आर सपोज टू डू योर होमवर्क इन योर डायग्राम बुक्स, एक वो बोला था डायग्राम्स के बारे में। और दूसरा मैंने ओरल्स के बारे में स्पेसिफिकली क्लियर किया था ये चीज कि आफ्टर एवरी लाइक नेक्स्ट लेक्चर, every successive lecture you will be having oral on the previous part which is being done. Okay, so Nihit Mishra हम आपसे चालू करेंगे. Yes, miss. Fine. Okay, so when I ask you a question, you look at me and you answer it. ठीक है? Okay, good. So you tell me, why do we need classification? To find something easily. If it is arranged properly, so that we can find it anything easily. या फिर to study the organisms properly, even that you can say. उसके बाद में the next question is give me any two types of classification criteria. Body symmetry and body segmentation. Okay, ठीक है, स्मार्ट। हाँ, बॉडी सेगमेंटेशन अभी पढ़ा, वही पिकअप कर लिया। फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, गुड। श्रेया, Yes, Shreya miss. will answer me any two categories except what he said. Asymmetrical body. ते त्याने बोललं, बॉडी सिमेट्री और बॉडी सेगमेंटेशन उसने बोल दिया है, तो उसके अलावा क्या पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर? मैंने क्या पढ़ाया था? हिंट दे रही हूँ। डिप्लो हाँ, डिप्लोब्लास्टिक। क्या है लेकिन वो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ठीक है, बट व्हाट ब्लास्टिक? लाइक हु आर द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या है क्या वो एग्जैक्टली? रिवाइज नहीं किया है। ओके, अनदर, उसके अलावा पटके, ऑनलाइन पटके। बॉडी कैविटी। Body cavity. Okay, fine. So can you explain me them in short? Body cavity as well as diploblastic. जो तुमने बोला, that's not diploblastic. That is the germ layers. Okay, and the germ layers are of two types: diploblastic and triploblastic. So now you tell me, थोड़ा सा डिटेल में, what do you mean by diploblastic and what do you mean by triploblastic? In diploblastic, there are two germ layers, and in triploblastic, there are three germ layers. Okay, fine. Name the three germ layers. Okay, fine. Let it be. Shreya. Kashish Gupta. Yes, miss. Name the three germ layers. Endoderm, ectoderm, mesoderm. Andro nahi. Endoderm. Endoderm, mesoderm और ectoderm. Endoderm, mesoderm and ectoderm. ठीक है। लोकेशंस क्या है उनका? सबसे बाहर कौन है, मिडल में कौन है, मिडल में कुछ है भी या नहीं, उसके अंदर क्या है, लाइक उनका लोकेशंस मैंने एक्सप्लेन किया था। एंडोडर्म बाहर है और एक्टोडर्म से। तुम लोग कैसे पढ़ते हो उसको? वैसे पढ़ो ना जैसे मैंने पढ़ाया है। एंडोडर्म, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा हो जाएगा? एंडोडर्म हो जाएगा। एंडोडर्म, ठीक है। फिर क्या पढ़ाया था? एक्टोडर्म। एक्टो मतलब जो बाहर की तरफ रहेगा, तो उसको बोलेंगे एक्टोडर्म।
और उन दोनों के बीच में अब जो बचा है वो बीच में आ जाएगा। सिंपल। प्लीज होल्ड ऑन। आई नो दीस टर्म्स माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर, और डिफिकल्ट तो आना बाकी है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो उससे भी महा भयानक और महा डिफिकल्ट रहने वाले हैं। तो डिफिकल्ट ऐसा ये सब बोलना ही नहीं है, कीप ऑन रिवाइजिंग इट, कीप ऑन रीडिंग इट 5 6 10 टाइम्स कर लो, फिट हो जाएगा, बट यू नीड रिविजन। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देविका। Yes, miss. Yeah. Were you there for the last lecture? Okay, means you have attended. Okay, no problem. So you tell me different types of coelums. What is coelom, first of all? Coelom means cavity. Yeah, coelom is body cavity. Very good. Different types of coelums जो हमने last time पढ़ा, टेबल के तौर पे पढ़ा। Aculeatus, aculomates. नहीं, what? Means that words are not exactly known. वही that is what I was telling you last lecture में, कि ये words ऐसे directly spell out करने जैसे नहीं है। You need to practice them. It's either by reading, either by writing. I don't know तुम लोग में से अभी कितना घर पे क्या कर रहे हो, that cannot be said. But yeah, the different types of, जैसे pseudocoelom है, acoelomate है, right? Yes. coelomate है। तो ये जो वर्ड्स है इसका मीनिंग तब याद रहेगा जब तुमको वर्ड्स याद रहेंगे। जैसे एसीलोमेट, ओके, सो सीलोमेट मतलब कैविटी होना, एसीलोमेट मतलब नो कैविटी। No cavity. ठीक है। स्यूडोसीलोमेट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सीलोमेट का मतलब होता है कैविटी, मतलब होके भी कुछ नहीं होने जैसा है। सो दैट False इज cavity. ओनली अपीयरेंस वाला कैविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, miss. ठीक है, तो मैं ये ओरल इसके लिए नहीं ले रही हूँ कि मतलब मुझे मजा आ रहा है तुम लोग का वाट लगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज टू शो यू पीपल कि तुम लोग कितना पानी में हो। हम लोग को लगता है लेक्चर 2 हो गया मतलब हम लोग को सब आता है, तो ऐसा नहीं है। हाउ बट स्टिल यू हैव टू रीड अबाउट इट। अगर वर्ड्स नहीं याद रह रहे हैं तो हमको और कितना लिख के प्रैक्टिस करना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी तुमको आंसर पता है, सीलम का मतलब कैविटी पता है, बट तुम उसके आगे टाइप्स बता ही नहीं पा रहे हो, ना लिख पाओगे। डू यू थिंक यू विल गेट मार्क्स? ऑब्वियसली No. समझा? सो दिस इज नॉट, डोंट टेक इट एन नेगेटिव पॉइंट कि मैम हमको स्पॉट करके बता रही है, बट आई जस्ट वांट टू शो, तुम लोग खुद ने ही प्रूव कर दिया कि तुम लोगों ने वो लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। अंडरस्टैंड? अभी ज्ञानेश्वरी देखो सब पढ़ के आई है, ज्ञानेश्वरी मेरे को आंसर करेगी। यस ज्ञानेश्वरी, रेडी? मैम, yes, miss. हाँ, आपके लिए चैट का ऑप्शन इनेबल करो ना। क्या करूँ? चैट ऑप्शन। क्या करूँ चैट ऑप्शन को? आपसे चैट नहीं कर सकते, आंसर देना है तो तेरे को नहीं पूछा है ना मैंने, रहने दे, मत कर आंसर। डाउट भी रहेगा तो हैंड रेज कर देना, डाउट। मैं पूछ लूंगी तुझे। ओके, अगर कुछ रहेगा तो, नहीं तो बीच में इंटरप्ट किया तो भी चलेगा। एक इफ आई एम कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वेट फॉर दिस टू हैपन, जस्ट so any doubt you can just like just एक ऐसा हाय कर दो वहां पे, I'll ask। ठीक है, और आंसर्स तो मैं जिन लोग को पूछ रही हूँ वो लोग ही आंसर करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो ज्ञानेश्वरी, आर यू देयर? Yes, miss. Okay, so tell me the types of symmetry. Asymmetrical body, radial symmetry, and bilateral symmetry. Okay, so what do you mean by asymmetrical? Asymmetrical, in this type of body, an imaginary axis is not such imaginary axis of the body. It Through- हिंदी मध्ये पण चालेल, फक्त मला मीनिंग सांग। हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। हम लोग उसके ऊपर इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, लेकिन जो डिवीजन होगा वो वो टू इक्वल हाफ में नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइड तो मैं कर लूंगी मेरे हिसाब से, बट विल इट रियली गिव मी टू इक्वल हाफ? नो, सो दैट इज No. एब्सोल्युटली असिमेट्री। ओके, व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री? Through which we can get two equal halves. Okay, good. And what is radial symmetry?
radial symmetry and imaginary axis from the central of the body of the through which we organism. but प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब प्लेन कौन से भी प्लेन के ऊपर से वो इमेजिनरी प्लेन लाइन के कट ऊपर होना होगी, चाहिए. यस तो फिर वो 2 इक्वल्स आप देगा. वो टू इक्वल कैसे देगा? रेडियल 5 देगा ना. 5 में सर्फेस से का 2 देगा ना मिस. एग्जांपल देखा हमने, तो 5 प्लेन्स होना चाहिए. हैव यू सीन दैट? हाँ, हाँ यस मिस, आई हैव मतलब टू रीड. यू विल गेट, बट मैं स्टार किसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, समझा? यस. ओके, वेरी गुड. सो इसका मतलब यू हैव रेड इट. नाइस, ठीक है, फाइन. मैंने बोला ना नैनेश्वरी पढ़ के आई है, वो आंसर करेगी. ओके फाइन. Am I audible to all of you? Yes. यस मिस. Yes, miss. Am I audible to all of you? Yes, miss. Yes, miss. यस मिस. Fine. So here I would like to end up with the oral session. ऐसे मैंने randomly 4-5 जनों को उठा के ऐसे ही questions कर लिए हैं, and this is going to happen every lecture. So बाकी लोग भी prepared हो जाओ. And जो लोग मुझे आज ठीक तरीके से आंसर नहीं दे पाए हैं, don't take it in a bad way. उल्टा ऐसा सोचो कि अच्छा मतलब इतना अपना पढ़ाई बाकी है. So please go back and study all that, because जब तक तुम लोगों को ये क्राइटेरिया नहीं होंगे, your phylums won't be easy. एंड अगेन आई रिपीट, फाइलम्स के नाम भी डिफिकल्ट होंगे, तो तुम लोगों को उसका लिख के प्रैक्टिस करना है कंपल्सरी. एम आई क्लियर टिल हियर? ओके फाइन. सो आई थिंक वी शुड मूव अहेड नाउ. एंड इवन द न्यू कमर्स जो है, वो लोगों ने तो आज आई थिंक सबसे पहले ओरली देख लिया, तो ऐसा डरने का वगैरह नहीं है. डोंट वरी, ऐसा हम लोग अभी थियरी चालू करेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑल्सो. मैंने बोला था ना नैनेश्वरी पढ़ के आई है, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा था, मैम कुछ भी पूछो, आई कैन आंसर एनीथिंग टुडे. So such sort of confidence I'm supposed to see on everybody's face. Okay, so you have to study. Okay, fine. So I'm just sharing the screen for the next part of the chapter, that is हम phylums चालू कर देंगे. तो मैं screen share कर लेती हूँ और फिर हम लोग phylums चालू करेंगे. So please ध्यान देना, please focus. तबारिश, नींद आती रहेगी तो मुंह धो के आ जा. हाँ, नींद नहीं आ रही है. नींद नहीं आ रही है? आती रहेगी तो एक मस्त जाके splash of water. Okay, can you all see the screen? यस मिस. Yes, miss. Yes. Okay, fine. तो अभी जैसे फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है, इस पेज पे 2 फाइलम्स दिए हुए हैं. एक है फाइलम पोरीफेरा, दूसरा है फाइलम सिलेंट्राटा, या फिर उसको निडेरिया भी बोला जाता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निडेरिया, सी साइलेंट है वहां पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन निडेरिया. तो ऐसा बोलना नहीं है कि नहीं मैम हमने तो सिलेंट्राटा पढ़ा है, लेकिन दोनों सेम ही है. ठीक है, तो उनके अनदर नेम्स क्या है वो भी तुमको याद रखना है. एम आई क्लियर टिल हियर? Yes. यस. Yes, miss. Okay, fine. Am I audible to all of you? Yes, miss. यस मिस. Yes, miss. Fine. Okay, so Anagha, can you start reading from the first point? Read a point and you stop. Okay, teacher. Phylum Porifera. These animals are with simplest body plan and are called as sponges. They bear numerous spores on their body. Those spores are called as ostia and oscula. Okay, so according to the name, सबसे पहले पोरीफेरा ये वर्ड को तुम लोग अंडरलाइन करोगे अपने अपने टेक्स्ट बुक में. मैंने यहाँ पे करना मैं भूल गई हूँ, ये मेरे टेक्स्ट बुक का मैंने पीडीएफ बनाया है, so I forgot to do that. पोरी मतलब होता है पोर्स एंड फेरा मतलब होता है बेरिंग. तो पोर बेरिंग मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिसपे पोर्स प्रेजेंट होंगे उनको पोरीफेरा या फिर पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. ठीक है, so these are the simplest body plan वाले, इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है. so I think that is your example. You have 3 examples there of porifera. एक है स्पॉन्ज, दूसरा है स्पॉन्जिला और तीसरा है साइकॉन.
ओके, अदर्स प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओनली द पर्सन जिसको पढ़ने के लिए बोला है वो टाइम के लिए अनम्यूट करेगा. Am I audible to all of you? Yes, teacher. Yes, ma'am. Yes. Okay. Continue. Okay, teacher. These are aquatic animals. Most of them are marine and few are freshwater dwellers. Okay, so Anagha will answer me. What do you mean by aquatic? लिखा है मैंने वैसे वहाँ पे. What do you mean by aquatic? Aquatic plants are those who live in water. Okay. What do you mean Aquatic by animals. marine and freshwater dwellers? Marine water, the animals which live in saline, that is sea, and fresh waters like river and all have fresh water. Okay. So the animals which live Very in good. fresh water. Okay, so now you understand. Yeah, so now you understand कि हमने ये सारे टर्म्स पहले क्यों पढ़ लिए, बिकॉज अब इसमें जब ये टर्म्स थ्रो होंगे डायरेक्टली ये टर्म्स फेंके जाएंगे यहाँ पे एक एक, asymmetrical, then bilateral symmetrical, radial symmetrical, या फिर acoelomate, then pseudocoelomate. तो जब ये वर्ड्स यहाँ पे आएंगी तो you don't have to go back and see. If you are thorough with the definition, तुमको immediately इसमें पॉइंट बनाने को आना चाहिए. ठीक है, fine. Next, start reading. Most of the animals have a symmetrical body. Yeah, continue. These animals have special types of cells, collar cells. These animals, Okay, continue. these animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion. Substratum. Hence do not show locomotion. Hence they are referred as sedentary animals. Continue. ओके फाइन. सो क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले तो ये बोला गया है कि मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ असिमेट्रिकल बॉडी. अच्छा मैम, असिमेट्रिकल बॉडी मतलब क्या? सो एसिमेट्री मतलब कहीं से भी स्पंज को कट करो तुमको इक्वल ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कंसिस्टिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू. सो व्हेनेवर यू ट्राई टू कट इट, वो एब्रप्ट कट. अभी ये अगर तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो कि व्हेन यू हैव अ स्पंज, ओके, और कुछ भी योर कार क्लीनिंग के लिए या घर पे किसी डिवाइस का क्लीनिंग के लिए अगर तुम लोग उसको यूज करते हो, ट्राई कटिंग इट विद अ ब्लेड. खुद का उंगली मत काट देना, ऐसा कुछ मत करो. एक्चुअली करो ही मत, घर पे रहने दो. कुछ हो गया तो फुकट मेरे नाम पे आ जाएगा, रे कोमल मैम ने बोला इसके लिए हो गया. सो डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट. जस्ट एन एग्जांपल कि इफ यू वांट टू टेस्ट इट ओवर, अगर तुम लोगों ने उसको कट किया बाय अ नाइफ और एनीथिंग, यू कैन सी बहुत ही एब्रप्ट कट जाता है उसमें. एब्रप्ट मतलब एकदम ऊपर नीचे वाला कट हो जाता है, एंड यू डू नॉट गेट टू इक्वल हाफ्स. बाद में they have a special type of cells which are called as the collar cells. If you can see there, वहाँ पे collar cells दिया हुआ है. They are always attached to the substratum. So substratum का मतलब होता है base, नीचे वाला base, उसको substratum बोला जाता है. Okay, so substratum पे जो attach होते हैं, okay, and hence they do not show any locomotion. Locomotion मतलब कोई भी movement नहीं दिखाता है, और इसीलिए इनका नाम क्या दिया है, as sedentary animals. What do you understand by the word sedentary? Anyone who can answer? Lazy बोल सकते हो, या फिर the person who sits at a place for long hours, तो उसका लाइफ एकदम sedentary हो जाता है. A person is very active, and other hand कोई एक person है जो बस खा पी के काम करने के लिए 8-8 घंटा एक ही जगह पे बैठा है, तो वो एक sedentary lifestyle जी रहा है. Okay, so at a place मतलब मूवमेंट है ही नहीं बिल्कुल भी. तो ऐसे इसमें से मैम की पॉइंट्स हम कैसे याद रखेंगे, मैं वो तुमको लास्ट में बता दूंगी. पहले ये बचा हुआ पॉइंट्स फिनिश कर देते हैं. यस, कंटिन्यू. Their spongy body is supported by spicules or spongin fibers. Spicules are made up of calcium carbonate or silica. These animals feed upon small organisms. Okay, so you can call them, हाँ, you can call them as spicules. Spicules बोल सकते हो, spongin fibers बोल सकते हो. तो उनको जो एक सपोर्ट रहता है, that is being given by the spicules which are given there. अभी एक्चुअली ये लोगों ने ये आधा ही डायग्राम दिया है, तो डोंट वरी, जब मैं तुम लोग को डायग्राम्स वाला पीडीएफ दिखाऊंगी वो भी रेडी है. तो जब डायग्राम्स मतलब सारे के सारे जब अपने फाइलम्स खत्म हो जाएंगे ना, तो जितने भी फाइलम्स में एग्जाम्पल्स है उसके मैं प्रॉपर तुम लोग को डायग्राम के साथ एक 10-15 मिनट्स का उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, तो उसमें मैं तुम लोग को अच्छे से बता दूंगी. ये लोग क्या करते हैं, एक चीज देते हैं दूसरा देना भूल जाते हैं. अभी इसमें ये दिया है, स्पिक्यूल्स नहीं दिया है. तो व्हाट दे डू दैट थिंग. ओके, तो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि वो सपोर्ट के लिए होता है, और वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका से. ठीक है, एनीबडी हु कैन टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट?
CaCO3. No one. CaCO3. CO3. CaCO3. CaCO3. CH CO3. गूगल किया क्या सबने एक साथ? No means. No, ma'am. एक साथ गूगल करके चल बता देते हैं, एक साथ सब कुछ बता दिया. Okay, so it is CaCO3. Yes, that's the formula for calcium carbonate and silica. Okay, fine. Next part. These animals feed upon small organisms taken in their body along with water. Water is taken in through ostia and given out through oscula. Okay. These So, animals, हाँ, पढ़ो पढ़ो. हाँ ठीक है. These animals reproduce by budding and a sexual method and or bisexual method. Besides, they have good ability of regeneration. Examples: Sycon, Euspongia, bath sponge, Hyalonema, किती Euplexectella. सुंदर मस्त मस्त नाम दिया है एकदम. हाँ, हाइलोनिमा एंड उसके बाद में EUPLECTELLA क्या होगा? Euplectella. यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला. ओके, सो अभी इतना यूप्लेक्टेला ये नाम याद रखने से अच्छा हम एक काम करेंगे, हम साइकॉन याद रखेंगे, हम स्पॉन्जिला याद रखेंगे, ठीक है, और हम यूस्पॉन्जिया भी याद रख सकते हो. सो 2 to 3 एग्जांपल्स इज मोर देन इनफ. ओके, फाइन. सो अभी मैं एक इसका कीवर्ड तुम लोग को बता देती हूँ. सबसे पहले आएगा पोरीफेरा का डेफिनेशन. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. तो पोरीफेरा में सबसे पहले आएगा उसका डेफिनेशन, मतलब पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, और पोर्स बेयरिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइक द फाइलम का नेम, हेंस इट इज गिवन एज पोरीफेरा. उसके बाद में उसके पोर्स का जो नाम है, जैसे ऑस्टिया है और ऑस्कुला है. तो ये जो ऑस्टिया एंड ऑस्कुला होता है ना, ये जो यहाँ पे कॉलर सेल्स दिखाया है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस नाउ. ये ऑस्क्यूलम और ये ऑस्कुला, ठीक है, ऑस्टिया. ऐसा बोलते हैं कि ये जो साइकॉन स्पंज है, इसमें से जो वाटर जाता है उसमें हाई, इसको मतलब वाटर वास्कुलर सिस्टम बोला जाता है, या फिर मतलब इसके अंदर जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो वाटर वास्कुलर सिस्टम है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड, एंड बाद में जो बाहर डालते हैं, लाइक व्हेन यू फॉर एग्जांपल यू होल्ड वाटर, द स्पंज होल्ड्स वाटर, एंड व्हेन यू क्रश इट और व्हेन यू ट्राई टू प्रेस इट, व्हाट हैपेंस, द वाटर कम्स आउट. तो ऐसा है, ऐसा मैंने रीड किया है इसके बारे में कि when the water enters into it, तो जितना यूज करना है वो यूज कर लेगा, and the remaining ones is given out to the osculum. So ostia is the one which takes place. Osculum, I think, okay, I'll tell you about this during the diagram. Sort of मैं थोड़ा इसमें confused हूँ, ostia लेता है या osculum लेता है, so I'll tell you accordingly. Right now के लिए इसको हम pending रख देंगे इस diagram को, ठीक है, but I will explain you when we will be showing the PDF of the diagram, ठीक है, fine. यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो इसमें मेन पॉइंटर्स क्या आएगा, सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद ऑस्टिया एंड ऑस्कुला के बारे में लिखना है. यू हैव टू राइट देयर एक्वाटिक, मरीन, फ्रेश वाटर, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिख के रखो. asymmetrical body, they have collar cells, they stick to the substratum, or you can say substratum word नहीं याद आया तो they stick to the base and hence they do not show any locomotion. या फिर तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, since no locomotion they are called as sedentary animals. सिंपल. फिर बाद में उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है उनके अंदर, या फिर दे आर सपोर्टेड बाय दी स्पिक्यूल्स. फाइन. अब स्पिक्यूल्स किससे बना है, बस स्पिक्यूल के बारे में बता देंगे तो भी चलेगा कि CaCO3 से बना है. सिंपल. एंड लास्ट में वाटर इज टेकन इनटू द ऑस्टिया, इट इज गिवन हियर ओनली, वाटर इज टेकन आउट, इज टेकन इनटू द ऑस्टिया एंड इट इज गिवन आउट टू द ऑस्कुला. मतलब मैं सही, ओके, आई वाज राइट, कि ऑस्टिया से पानी लिया जाता है और ऑस्कुलम से वाटर को बाहर दिया जाता है. सो आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर, बट आई डोंट थिंक दैट पॉइंट हैज टू बी एडेड ओवर हियर, बिकॉज तुम लोग को सिंस वो 10th के लेवल पे नहीं दिया है, हमने ग्रेजुएशन के लेवल पे उसको पढ़ा था. वी हैड अ टोटल यू नो लाइक डिस्क्रिप्टिव एकदम डिटेल में वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में वगैरह दिया था, बट देन नो नीड टू ऐड दोस थिंग हियर. द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज अबाउट दी these animals reproduce by budding. अभी सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चाहिए, व्हाट इज बीन रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Gametes are needed in sexual reproduction. You need male gamete
फीमेल गैमेट, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट कम टुगेदर दे विल फॉर्म जाइगोट, ठीक है, दैट इज अ कंप्लीट इन शॉर्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे वेज है, जैसे इसमें बडिंग के बारे में दिया है और एक है फ्रैगमेंटेशन के बारे में। तो ये जो अलग अलग एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ होते हैं, सो एसेक्सुअल और सेक्सुअल का फर्क, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे पेरेंट्स है वैसे सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम माई डैड दे लुक डिफरेंट, राइट, आई एम देयर चाइल्ड, ओके, अब मैं उनकी फर्स्ट डॉटर हूँ, so I have got few qualities from my mom and I have got few qualities from my dad, but I don't resemble same to my mom. This is about sexual reproduction. बट अगर मैं एसेक्सुअल की बात करती हूँ तो आप देखोगे जिस प्लांट को, अभी मैंगो का ट्री है तो उसके मैंगोज ही आएंगे सेम, मतलब जैसे है, या फिर एनिमल्स की बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक एनिमल्स विल बी अ गुड एग्जांपल। काउ, कैटल, सेम, रिजेंबल्स सेम, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। मैं एसेक्सुअल का एग्जांपल्स दे रही हूँ तुम लोगों को कि एसेक्सुअल में सेम टू सेम रिजेम्बलेंस होगा। जैसे अभी इसमें एग्जांपल तुमको दिया है बडिंग के बारे में, अगर मैं बडिंग का एग्जांपल देती हूँ तो बडिंग में क्या होगा, हाइड्रा, हैव यू हर्ड अबाउट हाइड्रा? हाइड्रा इज अ व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा इज अ व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत माइन्यूट होता है, बहुत बहुत माइन्यूट होता है। तो क्या करना होता है कि उस हाइड्रा के टेंटिकल्स होते हैं, आई शो यू इन द डायग्राम, वो पीडीएफ में, तो उसके ऐसे टेंटिकल्स फिंगर जैसे होते हैं, उसके अगर टेंटिकल को तुम कट कर देते हो, ठीक है, तो वहां पे नया बर्ड तैयार हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर उसके बर्ड या फिर आई मीन नॉट बर्ड, उसके अगर टेंटिकल को कट किया जाता है, so you get a new bird coming over there and that bird is called as the bird of hydra, और इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को कहा जाता है बडिंग। ओके ओके फाइन, वन सेकेंड, एक हाइड्रा है, ठीक है, अभी हाइड्रा का धीरे धीरे बर्ड्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, बर्ड्स का एग्जांपल मैं बताती हूँ। रोज का प्लांट है घर पे, तो छोटा छोटा कली ऐसा निकलता है, वो कली आने के पहले समझ में आता है कि यहाँ पे ये ब्रांच पे आने वाला है, ये ब्रांच पे आने वाला है, यू कैन सी दैट बाय ऑब्जर्वेशन। तो छोटा सा बर्ड आता है, वो बर्ड ही आगे फ्लावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब ये बर्ड्स आना चालू हो जाता है हाइड्रा के ऊपर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब मैंने कुछ कट बिट नहीं किया है, इट्स अ नॉर्मल ग्रोथ व्हिच इज हैपनिंग इन हाइड्रा, बडिंग। जब बडिंग होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी उसका छोटा सा आउटग्रोथ हुआ है उसको बर्ड कहा जाता है। वो जो आउटग्रोथ है वो अपने पेरेंट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेगा, किसके लिए, फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, क्योंकि जो भी हाइड्रा नीचे से लेगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म सबको वो सप्लाई करेगा, तो बर्ड को भी वो चीजें मिलेगी, न्यूट्रिशन, फूड, एवरीथिंग। द मोमेंट उसको पता चलता है कि नाउ बर्ड इज गोइंग टू बी अ मैच्योर्ड हाइड्रा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा, तो वो उसको खुद पे नहीं रखेंगे, वो धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, वो बर्ड उस ओरिजिनल जो पेरेंट है ना, हाइड्रा पेरेंट, उसमें से डिटैच होके बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को पीडीएफ दिखा देती हूँ, दैट विल बी मच मोर बेटर आई थिंक। तो हाइड्रा है, उसका बर्ड बाहर निकलेगा, वो उसका आउटग्रोथ, इन शॉर्ट वो उनका बेबीज है, वी कैन से लाइक दैट, राइट। तो हाइड्रा का वो बेबीज या वो आउटग्रोथ जैसे रहेगा। अब क्या होगा, वो जो आउटग्रोथ है, वो जो एक छोटा सा बर्ड जैसे आया है, वो कंप्लीटली न्यूट्रिशन पे डिपेंड करेगा, किसके, पेरेंट हाइड्रा पे, लेकिन कब तक डिपेंड करेगा, जब तक वो बच्चों। एक बार हाइड्रा को समझ गया कि अरे भी ये मेच्योर होने वाला है, तो वो उसको खुद के बॉडी में से, पेरेंट बॉडी में से हाइड्रा को सेपरेट कर देगा, या फिर वो खुद ही सेपरेट हो जाएगा, और जहां पर वो गिरेगा या जहां पर वो भी wherever it falls, वहां पे एक नया हाइड्रा ग्रो होना स्टार्ट। Are you understanding? So this is called as budding. इसको कहा जाता है budding process. Still, if you want me to explain it more better, so मैं next time PDF में मैं उसका एक short procedure तुमको डायग्राम के हिसाब से दिखा दूंगी, उसमें ज्यादा इजी हो जाएगा। बट प्रोसीजर याद रखना है budding का, बर्ड आउटग्रोथ जैसे ग्रो होता है, ओके, वो डिपेंड करेगा न्यूट्रिशन और फूड किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कब तक, जब तक वो मेच्योर्ड नहीं होता।
एक बार वो मेच्योर्ड हो जाएगा तो वो अपने आप पेरेंट से डिटैच होके नीचे गिर जाएगा या फिर कहीं और गिर जाएगा एनीवेयर, और जहां पे जाके गिरेगा वहां पे अ न्यू हाइड्रा विल टेक प्लेस। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। स्पॉन्जेस में भी सेम होगा। स्पॉन्जेस हैव द लाइक क्वालिटी ऑफ रीजेनरेशन। अगर मेरे हाथ में ये बड़ा स्पॉन्ज है, जैसे एन एग्जाम्पल, उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, स्क्वायर स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट देखा है तुम लोगों ने, कार्टून, राइट? तो वो जो स्पंज बॉब है जो चड्डी पहन के रहता है, वो तो स्पंज ही है ना, खाली बात करता है, मतलब क्या हुआ, बट दैट इज अ स्पंज ओनली, वाटर स्पंज, ठीक है? तो वो जो स्पंज है, अगर समझो मैंने उसको ऊपर से कट कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम उसका जो कट हुआ पार्ट है वो कॉम्पेंसेट हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हेंस porifera has a very high rate of regeneration quality. मैम वो लिखे या ना लिखे? नहीं लिखेगे तो बेटर है, अपना स्कूल में देखो क्या बोलते हैं, बिकॉज रीजेनरेशन जितना मैंने पढ़ा है बट वो पॉइंट यहाँ पे ऐड नहीं किया होगा। वो लोगों ने क्या किया है, मेन 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 उनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लगा है वो उन्होंने यहाँ पे ऐड करके दिया है। एम आई क्लियर टिल हियर? एनी कंफ्यूजन? अगर कुछ कंफ्यूजन है भी तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर पीडीएफ बना के मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, सो नो वरीज। ओके फाइन, सो आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट फाइलम। Okay, the next phylum which you can see is about Coelenterata, Cnidaria. Both are same. Body of these animals is cylindrical or umbrella-like. That's the shape given over there. So अभी अरे हाइड्रा देखो नीचे ही दिया हुआ है. Can you see this hydra now? जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी वो यहाँ पे अप्लाई करने का सोचो। हाइड्रा यहाँ पे दिया है, हाइड्रा का टेंटिकल्स दिया हुआ है और हाइड्रा का न्यू बर्ड भी दिया हुआ है, ठीक है? तो जब ये न्यू बर्ड ग्रो होता रहेगा तब तक हाइड्रा उसको सर्व करेगा, बट एक बार वो बर्ड बड़ा हो गया, अब उसको समझ रहा है कि वो भी बड़ा होते जा रहा है, उसका वेट बढ़ते जाएगा, तो द हाइड्रा इज गोइंग टू अंडरस्टैंड, द पेरेंट हाइड्रा इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नाउ द बच्चू इज गेटिंग एल्डर, तो उसको क्या करना चाहिए, अपन से अलग कर देना चाहिए। द मोमेंट वो बर्ड बड़ा हो जाएगा वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। ओके फाइन, तो यहाँ पे क्या दिया है, ओके हाइड्रा इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा। हाइड्रा मैंने सिर्फ तुमको बडिंग एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, miss. Yes. हाइड्रा इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा। हमने सिर्फ वहां पे एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके, सो बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, यू हैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो वो मैंने सिर्फ बडिंग एक्सप्लेन करने के लिए तुमको हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया था वहां पे। ओके, सो पोरिफेरा में हाइड्रा एग्जाम्पल नहीं आएगा, टू बी वेरी क्लियर, नहीं तो हाइड्रा लिख दोगे और बोलोगे मैम ने हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया था इसके लिए। सो लेट मी क्लियर अप माई पॉइंट। फाइन, अभी अगर हाइड्रा को तुम लोग ध्यान से देखोगे तो क्या दिया है कि बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज सिलेंड्रिकल। यस, वी कैन मेक आउट दैट, देखो बॉडी सिलेंड्रिकल है। फिर क्या दिया है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है। इफ इट इज सिलेंड्रिकल इट इज कॉल्ड एज अ पॉलिप, एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक देन इट इज कॉल्ड एज अ मेड्यूसा। तो हमको यहीं पे एग्जांपल्स दिख गए। देखो अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो इसकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल, तो इसको क्या बोला जाएगा, POLYP, पॉलिप। और अगर अम्ब्रेला जैसा है, जैसे सी एनीमोन को देखो, अम्ब्रेला जैसे ऊपर स्ट्रक्चर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे मेड्यूसा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंटर्स में कैसे लिखेंगे तुम लोग, सिलेंट्रेटा की बात करेंगे। ओके, तो सिलेंड्रिकल, सिलेंट्रेटा है, इसके लिए उसका बॉडी कैसा रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा या फिर अम्ब्रेला लाइक। अगर सिलेंड्रा के सॉरी अगर सिलेंडर के जैसा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलिप, एंड इफ इट इज लाइक अम्ब्रेला इट इज कॉल्ड एज मेड्यूसा। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, मतलब सलाइन वाटर में रहेंगे, ओनली फ्यू विल बी ड्वेलिंग इन दी फ्रेश वाटर। अभी ये जो कुछ इजी पॉइंट्स है मैं इनको वापस नहीं एक्सप्लेन करूंगी, तो यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन? No, miss. बिकॉज अभी मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस, ये तुम लोग को समझ, यू पीपल हैव गॉट टू दैट नाउ, तो मुझे बार बार वो वर्ड्स बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ नया वर्ड आता है या फिर जो हमने देखा है क्राइटेरिया में तो मैं उसमें से एक आधा तो डिस्कस कर लूंगी।
अब यहाँ पे क्या दिया है, बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल, फाइन, इक्वल टू हब्स में आएगा, वेयर एज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब कितना लेयर्स रहेगा, Any two. कितना, Layer of germs. 2 लेयर्स Two रहेगा, layers. या वेरी गुड, 2 लेयर्स ऑफ 2 जर्म लेयर्स रहेगा, एक तो एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक तो मेसोडर्म एंडोडर्म, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। सो दिस इज हाउ मेन पॉइंट गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट इज nidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Okay, nidoblast bearing tentacles are present around the mouth. Tentacles are useful for capturing the prey, whereas nidoblasts inject the toxin in the body of the prey. Okay, so सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाएंगे। Okay, this is the clear diagram here now. Fine. उसका माउथ है, टेस्टिस है, ओवरी है और टेंटिकल्स है। ओके, टेस्टिस और ओवरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो हो गया अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट हम माउथ के बारे में जरूर बात करेंगे। क्या दिया है, माउथ के आजू बाजू में यू हैव टेंटिकल्स। दीज टेंटिकल्स विल, बाय द वे यहाँ पे तुम लोग को दिखाने के लिए इसको ग्रीन कलर में दिखाया है, इसको हमने ओरिजिनली देखा है ड्यूरिंग अवर प्रैक्टिकल्स। तो जब हमने देखा है तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट है, और हम लोग को उसका टेंटिकल्स कट करने के लिए बोला था, उसका ग्रोथ देखने के लिए। तो बिलीव मी, ये इतने शैतान है ना, लाइक सीरियसली दे वर जस्ट मूविंग हियर एंड देयर। उनका एक टेंटिकल हमको ब्लेड से कट करने के लिए भी 10 बार माइक्रोस्कोप में देख देख के मैं तो अंधी हो गई थी। तो जस्ट इमेजिन कि एक तो दे आर टू शॉर्ट इन साइज एंड सेकेंडली ट्रांसपेरेंट। ओ माय गॉड, तब तो खत्म, मतलब मैं तो, मुझे ऐसा हो गया था कि मैं 4 चश्मे भी पहन लूं तो भी मुझे नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए दे हैव गिवन यू इन ग्रीन कलर, ठीक है। So don't think that Hydra is in green color, okay? So ये जो टेंटिकल्स हैं ये क्या करेंगे, जो भी इनके सामने प्रे आएगा उसको पकड़ने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे। और एक बात तो उन्होंने दिया है, नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट जो है ये एक टिपिकल टाइप ऑफ सेल्स है। ये क्या करेंगे, अभी अगर प्रे जिंदा है और बाय चांस हाइड्रा से टेंटिकल्स का होल्ड थोड़ा सा लूज हो गया, तो वो प्रे छूट के जा सकता है या फिर वो बच सकता है, इट कैन जस्ट गेट रिड ऑफ हाइड्रा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए इमीडिएटली जैसे हाइड्रा का जो टेंटिकल्स है वो प्रे को पकड़ेगा, दीज नीडोब्लास्ट ये लोग क्या करेंगे, एक पॉइजन, टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन, वो क्या कर देंगे, उसके अंदर रिलीज कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो मर जाए। और फिर उनका ही कब्जा है, किसका, हाइड्रा का कब्जा है उनके प्रे पे। Those are useful for protection too. उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी वो यूज कर सकते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जाम्पल, हाइड्रा, Adamsia, that is the sea anemone, Physalia, that is the Portuguese man of war, and Aurelia, that is the jellyfish, corals. ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स के तौर पे थोड़ा सा बात करते हैं। बिफोर गोइंग टू एनीथिंग, जेलीफिश तो सबको पता है, एवरीबडी नो जेलीफिश, राइट। तो ऑरेलिया उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। नाउ इट इज योर चॉइस, तुमको क्या लिखना है, बट जितना मैंने देखा है, लाइक मैंने एक 10th का पेपर करेक्ट किया था, तो उसमें ऐसा मैंने देखा था कि जो भी हमारे सीनियर टीचर्स है उन्होंने ऑरेलिया, एक स्टूडेंट ने ऑरेलिया लिखा था, दूसरे ने सिर्फ जेलीफिश लिखा था। तो ऑरेलिया वाले को आधा मार्क्स दिया था, जेलीफिश वाले का मार्क्स कट किया था। मैम इससे हमको क्या समझना है, इससे तुमको ये समझना है कि दोनों भी नाम लिखो, कॉमन नेम भी लिखो और साइंटिफिक नेम भी लिखो। लेकिन मैम इतना याद कैसे रहेगा, तो हार्डली 2 से 3 एग्जाम्पल बाय हार्ट कर लो, ठीक है। हाइड्रा कर सकते हो, सी एनिमोन कर सकते हो, और तीसरा ऑरेलिया कर दो, सिंपल 3 एग्जाम्पल। सेफ साइड 3 से 3 एग्जाम्पल्स तो भी बाय हार्ट करके रख दो। Am I clear till here? Yes, ma'am. Yes. Fine. Okay, I think अच्छे से मैंने स्टार्टिंग के Ma'am, दो what is columns coral है। means? Sorry? Corals. Corals. So corals are the most beautiful thing, मतलब मेरे तो बहुत फेवरेट है वो। Those are present at the bottom of your sea. एकदम बॉटम में, सबस्ट्रेटम मतलब बेस को चिपक के वो रहने वाले हैं। दे आर वेरी कलरफुल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल इन लुक्स, एंड देन व्हाट, दे आर द कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। तो उसी तरीके से वो पानी में जो है, लाइक एक्वाटिक प्लांट्स क्या करेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स भी सेम नॉर्मल प्लांट्स के जैसा
कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन बाहर देंगे, ठीक है। बट वहां पे कुछ फिशेस है या कुछ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करेंगे, अपने जैसे काम करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। सो दोज आर दी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर्स, कोरल्स। तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से द वाटर बीनीथ स्टेज वेरी वेरी क्लीन। Still, if you want to read about them, it's a very interesting thing. But उसको बहुत I think उनको नॉट ज्वेलरी बट फैशनेबल कुछ बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल चीजें बनाने के लिए कोरल्स को यूज किया जाता है, तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बट एक्चुअली दैट इज रॉन्ग, बिकॉज दे आर लाइक एनवायरमेंट क्लीनर्स है वो, तो उनको डिस्ट्रॉय कर। आई थिंक you just read about corals if you want, that's a very interesting thing. But जितना मैंने पढ़ा है, this is the thing that they are environment friendly. और तुमको पता है जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो अपना दुश्मन हो जाता है, हम उसको मार देते हैं, isn't it? That is just an example about corals. So I think corals you can add, yes. So 2 to 3 examples by heart कर सकते हो। अभी ये स्टार्टिंग का जो फाइलेंस था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, बिकॉज इसमें मुझे हर एक वर्ड एक्सप्लेन करना था। बट आई थिंक अभी मैक्सिमम 80% वर्ड्स तुम लोग फेमिलियर हो गए उसमें से, सिमेट्री के बारे में, ड्वेलर्स के बारे में, मरीन एंड ऑल। फिर अभी आगे और आएगा तुम लोग को लाइक क्या बोलते हैं वो, सीलम के बारे में। सीलम मतलब जो कैविटी है। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में कैविटी रहेगा उसके में उसमें ही मतलब ये कैरेक्टर आएगा ना, तब तक तो नहीं आने वाला है। तो अभी तक जितना भी था वो क्लियर होना चाहिए। अभी होमवर्क सब लोग जॉट डाउन करके लेंगे। अभी के अभी मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना है पहले, और उसके बाद लिखो या फिर तुमको जैसे करना है। टेक्स्ट बुक में तुमको सब कुछ सही दिया है, जैसे अभी हमने पढ़ा, पॉइंट बाय पॉइंट, ये तो सब दिया हुआ है। सेम टू सेम छापना नहीं है। तो होमवर्क में क्या करना है, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा लिखेंगे, ठीक है। उसके नीचे सिर्फ पॉइंटर्स लिखना है। मैम पॉइंटर्स कैसा रहेगा, पॉरीफेरा का एग्जांपल लेते हैं। पॉरीफेरा में तुम लोग को बता देती हूँ। पॉइंटर्स कैसा रहेगा, पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल स्पॉन्ज। पॉइंट नंबर 3 हैज स्पिक्यूल्स फॉर सपोर्ट, या फिर स्पिक्यूल्स लिख के एरो डाल के सपोर्ट, खत्म। पॉइंटर्स, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स बोलते हैं। और क्या दिया है, मरीन एंड फ्रेश दोनों ड्वेलर्स है, तो मरीन कॉमा फ्रेश ड्वेलर्स, खत्म। नो नीड टू राइट द स्टेटमेंट। और लास्ट में एग्जांपल्स। रिप्रोडक्शन के बारे में भी लिख दो। रिप्रोडक्शन, एरो, बडिंग, एरो, एसेक्सुअल, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, सिंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो इसी तरीके से तुम लोग को दोनों का लिखना है, पॉरीफेरा एज वेल एज द सेकेंड वन, दैट इज अभी किया ना, निडेरिया। मैम ये होमवर्क आज के लिए है क्या? अब ये होमवर्क कंटिन्यू होगा जब तक हम लोग लास्ट क्लास मेमेलिया तक नहीं पहुंच जाते। मैम ये नोट्स आप हमको नहीं दे सकते क्या? हम लोग को ही क्यों बनाना है, ऐसा भी कोई पूछ सकता है मुझे। आई डोंट नो, बट फ्यू पीपल कैन आस्क मी दैट। मैम आप पॉइंटर्स क्यों नहीं बना के देते? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग पढ़ो और पॉइंटर्स बनाओ। और मैं तुमको पॉइंटर्स बाय द वे मैं बता रही हूँ जब मैं पढ़ा रही हूँ। अगर तुम लोगों ने देखा रहेगा तो जब मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ तो वो तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पीडीएफ नहीं है, वो मेरा पीडीएफ है टेक्स्ट बुक का। और फिर लाइक माय टेक्स्ट बुक जिसमें मैंने नोट सब किया हुआ है, तो उसमें तुमको जो भी इंपॉर्टेंट दिखता है, जो भी मार्क किया हुआ दिखता है, वो फटाफट मार्क करके मे बी दोज आर द जस्ट पॉइंटर्स जो तुम लोग को लिखना है। इज इट ओके? और अगर मैं और एक चीज ये है कि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाने वाली ये टॉपिक का, इसके बाद जो हम चालू करेंगे फर्स्ट टॉपिक का जो थोड़ा सा टीडियस है। तो जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका मैं तुम लोग को हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ तुम लोग के पास में दे दूंगी। अब आई नो तुम्हारे पास नोट्स है, तुम्हारे पास डाइजेस्ट है, बहुत सारे यूट्यूब पे सब कुछ है, सब कुछ सब तुम लोग कर सकते हो। बट आई फील कि मेरे वर्ड से, मेरे सेंटेंसेस से, जो मैं स्वीट से सेंटेंसेस लिख के दूंगी मेरे हिसाब से, उसमें थोड़ा सा बीच बीच में हिंदी भी आएगा, हो जाएगा, कर लिया, ऐसा सब भी उसमें आ जाएगा। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना नोट्स में, बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग दैट तो वो ऐसे फ्लो में आ जाता है। बट बिलीव मी, दोज हैंड रिटन नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट। शेयर नहीं करना है कहीं भी उसको।
कीप इट विथ ओनली योरसेल्फ, ओनली फॉर योरसेल्फ, अपने क्लास के बंदे, अपने क्लास के बच्चे जो भी, बिकॉज दैट मेहनत या दैट सॉर्ट ऑफ एफर्ट्स आई एम टेकिंग ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स। ओके, सबारिश देखिए तो खुल के हंस रहा है एकदम, सो हैप्पी, वी आर गेटिंग नोट्स नाउ, क्या बात है। सच्ची खुश हो गया ना? क्यों खुश हो गया? शेयर नहीं करने का वो चीज बोला इसलिए हंसी आ रहा है तेरे को? हाँ, नो आई नो, अभी तक ऐसे बैठा था। Your voice is not clear. Voice is breaking. अभी आ रहा है, अभी आ रहा है? Yes, miss. Yes, miss. ना नहीं, तुम लोग ने सबारिश का तारीफ कर रही थी मैं, ऐसे मुंह बना के बैठा है, सब बोरिंग है लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या पता रही है, वही शक्ल, वही टॉपिक, वही बायोलॉजी, बट आज कुछ तो अच्छा बोल दिया, एंड फाइनली आई कैन सी दैट स्माइल ऑन हिज फेस टुडे। पढ़ाई कर रहा है क्या? ओके, so coming back to the homework part, कि जो भी मैंने बोला है ये तुमको हर एक फाइलम के लिए रिपीट करना है, हर एक फाइलम के लिए पॉइंटर्स। Ma'am, again it's not clear. Yes, miss. अभी आ रहा है क्या? Yes. अभी मैं एक काम करती हूँ, देखते हैं गार्डन में बैठ के लेक्चर लेती हूँ, बोल वाई बाहर मत, बीच बीच में जा रहा है। अभी भी जा रहा है? Yes, miss. हाँ, Yes, वॉइस थोड़ा miss. स्लो है। अभी ठीक है? अच्छा, अभी ठीक है? Yes. Yes, yes, miss. Now यस fine? Yes, miss. Yes. Yes. ओके फाइन। होमवर्क समझा? किसी को भी होमवर्क में डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालो, हैंड रेज करो या पूछो, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर के लिए होमवर्क रिपीट नहीं होगा। Miss, एनीबॉडी? या टेल मी। मिस लास्ट वीक आपने डेफिनेशंस दिए थे 2-3 बार लिखने को। हाँ, वो फेयर में लिखना है होमवर्क नोटबुक में। वो तो होमवर्क बुक में लिखना था। एक मिनट, मैं फेयर के लिए कुछ देती नहीं हूँ, आई फील फेयर में कुछ बनाने के लिए, क्या लिखने के लिए मैंने कुछ दिया नहीं है, मुझे याद है। तो यू कैन मेक योर होमवर्क एंड फेयर बुक एज वन ओनली, नो प्रॉब्लम, अलग अलग बुक बनाने का जरूरत नहीं है, समझ रहा है? मिस। हाँ, तो जो भी मैं डेफिनेशंस दे रही हूँ, जैसे कि आज मैंने ये होमवर्क दे दिया, तो ये भी सब तुम्हारा होमवर्क में ही आ जाएगा। या फिर अगर फेयर बुक बनाया है तो उसमें होमवर्क सेक्शन लिख के नीचे लिख दो, सिंपल, नो नीड टू मेक डिफरेंट बुक्स फॉर दैट। अच्छा, डायग्राम्स ले लो होमवर्क में, डायग्राम कैसे भूल सकती हूँ, डायग्राम्स ले लो, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और डायग्राम्स बता देती हूँ। ओके, सो मेरे हिसाब से हाइड्रा बना दो डायग्राम के लिए, क्योंकि हाइड्रा यार मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है? हाइड्रा बनाएंगे और साइकॉन्स। Ma'am, voice is not clear. अरे यार, ठीक है, रुको, मैं चैट बॉक्स में लिख के देती हूँ। Miss, your voice is not coming. Audible now? Yes, Yes, yes. it is. Okay, fine. So हाइड्रा बनाना है डायग्राम में और साइकॉन बनाना है, दैट्स ऑल।
only 2 diagrams I am giving you and only 2 short notes, that is porifera पे अगर मैं short note बोल देती हूँ तुमको बनाने के लिए, so you are supposed to know the pointers. और अगर हम निडेरिया के बारे में पूछूंगी तो एंड या कंपल्सरीली तुम्हारा ओरल होगा, ठीक है। सो इतना पढ़ के आओ, नेक्स्ट लेक्चर में हो सके उतना ज्यादा हम लोग फाइलम्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। इज इट ओके? सबको होमवर्क समझा क्या? अभी कुछ डाउट है तो अभी पूछ के लो, मैं टाइप नहीं कर सकती। कौन सा बनाना? ये देख, अभी ये बोलने के बाद भी ना ये लोग कोई ना कोई क्वेश्चन वाला रहेगा। नो प्रॉब्लम। साइकॉन एंड हाइड्रा। दिखा दो क्या एक बार? सबस्ट्रेटम मतलब बेस, BASE, बेस पे होता है। किसी भी मतलब प्लेस के जो बेस पे रहेगा, इट कैन बी सी, इट कैन बी एनीथिंग, एनी ऑफ द वाटर बॉडी, उसके अगर बेस पे है तो उसको सबस्ट्रेटम कहा जाता है। अटैच मतलब टाइटली अटैच टू दी बेस। तो हाइड्रा बनाएंगे और बाद में साइकॉन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट। हाँ, कॉलर सेल, कॉलर सेल्स वही पूछ रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो दीज आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉलर सेल्स। मैं उसका तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दूंगी जब हम डायग्राम पढ़ेंगे, तभी मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में PDF शेयर करूंगी जिसमें डायग्राम्स रहेंगे, तो वो टाइम पे मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एनी अदर डाउट्स? No, ma'am. हाँ, बिकॉज अभी मैं हो गया टाइम, सो आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू कर देंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे पूछो, और नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं PDF शेयर करूंगी, उसमें सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। एम आई क्लियर टिल हियर? फाइन। So chalo, we'll wind up with the session. See you all in the next lecture.